Hey everyone, today we have another amazing podcast session in Kahani series. So today we have a very special guest, someone who has been creating a beautiful impact in the mental wellness space. Joining us in Shweta from Shweta Heal, a mental health counselor, founder of Shweta Heal, and a passionate advocate for emotional healing and self-awareness. So, in today's conversation, we will dive deep into her journey, the story behind Shweta Hale, and how small steps can lead a big transformation in your life. So, sit back, relax, and let's begin this heartwarming, insightful journey with Shweta. So, let's dive in. So welcome back again in new episode of the Kahani series where we are in the virtual podcast with our so many amazing guests. So we have today Shweta, the founder of the Shweta Heals, and she's as well the mental health counselor. Shweta is a certified mental health counselor and the founder of Shweta Heals. And with a compassionate approach, she support individual in overcoming anxiety, stress, and emotional challenges. Her mission is to create a safe space for healing and self growth, helping people lead emotionally balanced and fulfilling their lives. So, welcome, Shweta. थैंक यू। तो श्वेता, मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहती हूँ। दैट इज़ बेसिकली जब भी हम मेंटल हेल्थ के इस बड़े से डोमेन में जाते हैं तो हमारे पास तीन ऐसे लोग होते हैं, जैसे कोई भी सपोज इफ आई एम सफरिंग विद सम मेंटल हेल्थ इश्यूज, ठीक है, तो या तो मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊंगी या साइकेट्रिस्ट के पास जाऊंगी या काउंसलर के पास जाऊंगी। तो कैन यू एक्सप्लेन कि हमें इन तीनों जो लोग हैं, हमारे प्रोफेशनल लोग हैं, इनको कब अप्रोच करना चाहिए? काउंसलर कैसे अलग है साइकेट्रिस्ट से, कैसे साइकेट्रिस्ट अलग है साइकोलॉजिस्ट से? सो प्लीज एक्सप्लेन दिस टू मी. So thank you for having me. And see, a psychiatrist is someone who is a medical person. He has studied medicine, and he deals with serious chronic mental health issues. And they do a little bit of counseling. Along with that, they deal with medicines. So they provide medicines. And psychologist is mainly a person who has studied, like he has come from an arts background. He is more towards therapies and healings, and obviously counselings as well. A counselor is a wider domain. So all the psychiatrists and psychologists can be counselors, but then all counselors cannot be psychiatrists and psychologists. Right? So a counselor is a wider domain wherein everyone fit into. And a person like me, I am a professional social worker, I am a lawyer, I am a legal counselor, I am a marriage counselor, I deal with career issues as well. So counseling has a broader aspect. I don't give medicines, but then yes, I deal with healings like touch therapies, I deal with music meditation. So, and people like who are motivational speakers, we have so many gurus in our society. So all these people are also termed as counselors. They also do counseling in a way. So counselor is a broader perspective which covers everything. So yeah, that is means that counselor can tackle every problem, but psychologist or psychiatrist should have deal with the medical issues, right? मतलब वो Yes, उनको मेडिसिन majorly. प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, उनको स्पेसिफिकली Majorly बता सकते हैं psychiatrist. आपको ये प्रॉब्लम्स है. Yes. Counselor also Okay. deals with issues. Like I also deal with stress, anxiety, but my way of taking counseling is different. My approach is a psycho-spiritual approach. My approach is more of a social approach. My approach is not in the way how a psychiatrist would probably deal with the case. And in chronic diseases also, like we have so many chronic diseases like cancer, and we have clinical depression. हम ऐसे ही बोल देते हैं हमें डिप्रेशन हो गया, बट डिप्रेशन का एक्चुअल मीनिंग अलग होता है. सो उन सब इश्यूज से साइकेट्रिस्ट डील करते हैं एंड साइकोलॉजिस्ट भी डील करते हैं.
but So, psychologists medicines नहीं देते. हम्म, Yes. सो जब हम भी कभी भी बात करते हैं अबाउट द हेल्दी इंडिविजुअल, तो हम एक डेफिनेशन अपनी सोसाइटी में ये सुनते आ रहे हैं दैट हेल्दी इंडिविजुअल इज द person who is totally fit and fine with the emotional level, physical level and societal level. मतलब एक सोसाइटी का भी एक इमोशनल बैलेंस होता है. तो अकॉर्डिंग टू यू, अगर कोई भी स्टेबिलिटी लेना चाहता है थ्रू देयर मेंटल हेल्थ, ठीक है, तो व्हाट इज अ डिफाइन डेफिनेशन फॉर यू कि हम कैसे किसी को बता सकते हैं दैट यू आर अ मेंटली हेल्दी? Okay, so it's a tricky question again. You know, health. If I talk about the parameters defined by government, then there are parameters like we have GDP for India, we have economic index. GDPs like we have economic index. एक सोसाइटी इकोनॉमिकली ग्रो हो रही है नहीं हो रही, उसके लिए इंडेक्सेस होते हैं. सो सिमिलरली वी हैव यू नो हेल्थ के लिए भी इंडेक्सेस हैं. देर आर कंट्रीज जहाँ हैप्पीनेस इंडेक्स भी होता है, हमारे कंट्री में नहीं है ये. सो दीज indexes or these parameters you can see, you can undergo those tests. So there are a lot of tests online as well. There is a stress test, there's an anxiety test, like we have psychometric test. So you can undergo these tests so that you know that okay fine, you आपका stress level इतना है, आपका anxiety level इतना है, and whether you consider yourself a mentally fit person or not. So that is one thing. Secondly, I feel that if you internally feel that you are happy and healthy, तो उससे बड़ा कोई पैरामीटर नहीं है. Right? अगर आप खुद हर वक्त खुश होते हैं या आप रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं सिचुएशन में, आप लोगों को समझते हैं, लोग आपको समझते हैं, with little bit of okay fine 5-10% issues होते हैं, तो that is a good parameter of saying कि okay fine, you are mentally stable, you know how to deal with the situation, and you are a happy person. Happy go lucky, you can say that. Yes. So you said ki there is a index, like mental health index of India is also there. There are so many countries who actually comparison their stress level, the happiness level. Yes. तो according to you, अभी जो mental health के level पे, what is the situation of India? See, like recently I was talking to someone in India. There are different sources जिनका stats है. So हम बहुत टेक्निकल नंबर्स पे तो मैं नहीं जाऊंगी, बट देन येस, अकॉर्डिंग टू इंडियन एक्सप्रेस वी से दैट मोर देन 45% ऑफ पीपल आर नॉट हैप्पी विद देयर जॉब्स. If I talk about careers, in fact, it is also mentioned that every 40 seconds, 20 to 40 seconds, there's one suicide. तो पर्सनल लेवल पे, करियर लेवल पे ये हालत है हमारे देश की, है ना. एंड इफ आई टॉक अबाउट मैरिज, इट इज सेड दैट आउट ऑफ एवरी 4 मैरिज, 1 मैरिज एंड्स अप इन सेपरेशन और डाइवोर्स. और कोविड के बाद ये सिचुएशन 25% इंक्रीज ही हुई है. तो ये हमारे इंडिया के रिसेंट स्टैट्स हैं, पर्सनल लेवल पे, करियर लेवल पे, मैरिज के लेवल पे. तो इससे हमें पता लग रहा है कि पोस्ट कोविड एरा मेंटल हेल्थ का जो लैंडस्केप है वो पूरा चेंज हो गया है. एंड नाउ वी नीड टू बी मोर अवेयर, वी नीड टू गिव मोर अटेंशन ऑन आवर हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ. इट इंक्लूड्स बोथ मैरिज, mental health, it includes your relationship, it includes your physical health, social health, everything. So क्या ऐसा, मतलब ऐसा हम समझ सकते हैं कि आफ्टर पोस्ट पैंडेमिक क्या लोगों को ये ज़्यादा लगने लग गया है कि येस दे आर अलोन इन देयर लाइफ, दे हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स बट दे कैन नॉट शेयर विद देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली? Okay, so first of all, there's a glitch, like in the, I hope that comes out well in the recording, but no issues.
डेफिनेटली पोस्ट कोविड क्या हुआ है कि जो वो 1.5 2 2.5 साल हम लोग घर के अंदर रहे, सबका ड्यूरेशन अलग था ओवरऑल। कोई 1 साल अंदर बंद था, कोई 2 साल बंद था, किसी का बिजनेस जल्दी ओपन हो गया था, कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिए थे। सो मोटा मोटा वी कैन से दैट अराउंड 2 years approximately we suffered badly, both mentally, physically, socially. तो उसका डीप इफेक्ट रहा है हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे भी, बिकॉज इट वॉज लाइक यू वर जेल्ड, आपको एक सजा सुना दी गई है सडनली, एंड घर के उन लोगों के साथ आपको जबरदस्ती रहना पड़ा है कहीं ना कहीं, जिनके साथ शायद आप कुछ घंटे रहते थे या आपके साथ उनकी बनती नहीं थी। और प्लस करियर बहुत सफ़र किया है लोगों का, बहुत ले ऑफ्स हुई हैं। हेल्थ वाइज बहुत लोगों ने तो बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाया, कुछ लोग रोज का खाना भी नहीं खा पा रहे थे। तो इन सारे इश्यूज के कारण somewhere deeply we got affected. Plus covid vaccines definitely had side effects. There are so many researchers now जो बता रहे हैं कि ये जो साइलेंट अटैक्स हो रहे हैं, ये एंजाइटी हो रही है, ये सब उसका ही साइड इफेक्ट है। और एक हेल्थ एंजाइटी करके एक टर्म है जो बढ़ गई है। एंजाइटी नॉर्म एंजाइटी कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, बट देयर इज दिस हेल्थ एंजाइटी जो सब में आ गई है पोस्ट कोविड कि हाय मुझे कुछ हो ना जाए, मुझे कुछ हो तो नहीं रहा है, मैं जल्दी तो नहीं चला जाऊँ, यू नो, फियर ऑफ अननोन, फियर ऑफ डेथ, जल्दी अपने अपनों को खो देने का डर, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हैव सीन अर्ली डेथ्स। काफ़ी लोग 30s 20s में ही चले गए ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, ड्यू टू कोविड। सो ओवरऑल देयर इज अ सेंस ऑफ फियर of losing themselves, losing their loved ones, losing career. किसी भी जॉब में आप परमानेंट, एक पहले होता था कि 25-30 साल एक जगह आपने बिता दिए, अब कंपनी ही पहले निकाल देती है लोगों को। और एआई के बाद वो और बढ़ गया है, अब वो फियर जितना था अब वो और बढ़ गया। इसीलिए एक माहौल सा बन गया है कि हर घर में आपको अभी इश्यूज और ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। But then, yes, the positive side of this is that people are more aware now. There are a lot of yoga, meditation, exercises. There are a lot of organizations which have come up helping, and awareness बढ़ी है mental health को लेके, spirituality को लेके. So somewhere फायदा भी हुआ है, but yes, नुकसान तो काफी हुआ है. So, like, I have this question in my mind. जब भी हम हेल्दी होते हैं वी आर अवेयर ऑफ कि हम हम हेल्दी है, वेदर इट्स अ इमोशनल लेवल, वेदर इट्स अ मेंटल लेवल, और वेदर इट्स अ फिजिकल लेवल। बट अगर सपोज हमें कोई बीमारी होती है, लेट्स टॉक अबाउट द फीवर, अगर मुझे बुखार हुआ है, मेरी बॉडी वो सिम्टम्स शो करेगी, ठीक है, सो दैट आई हैव टू गो टू द डॉक्टर एंड हैव सम मेडिसिन, सो मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन अगर मेरे को कोई मेंटल हेल्थ इशू है तो मैं इसका पता कैसे करूं? लाइक हम सब बात करते हैं अवेयरनेस की, यू हैव टू बी अवेयर अबाउट योर मेंटल स्ट्रेस लेवल, मेंटल एंजाइटी लेवल, यू हैव टू बी अवेयर अबाउट योर ब्रेन, माइंड एंड ऑल दैट स्टफ। बट अगर मैं किसी ऐसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रही हूँ तो ये चीज़ सबसे पहले मुझे कैसे पता चलेगी? So first of all, एक कंसिस्टेंट ड्यूरेशन तक अगर आपको लो फील हो रहा है, लाइक नॉट जस्ट फॉर फ्यू डेज बट देन फॉर गुड फ्यू वीक्स एंड मंथ्स एंड ईयर्स, तो फिर डेफिनेटली इट्स अ बिग साइन। तो आपको हेल्प सीख करनी चाहिए। You need to go out and talk to people. You can start with your friends and family members that you're going through this. You can do a little bit of online research. You can talk to AI counselors. Like I have a AI counselor chatbot too, which I'm currently working on. So उससे आपको एक आइडिया लगने लगता है कि okay, there's something going wrong at deeper level. क्या मैं ज़्यादा सोच रही हूँ या मैं ज़्यादा ही परेशान हूँ, मैं am I feeling too low? आसपास सब अच्छा माहौल है, पीपल आर हैप्पी, मेरे पास सब कुछ है बट फिर भी मुझे खुशी नहीं मिल रही, सो ऑल दीज क्वेश्चन स्टार्ट कमिंग इन योर माइंड एंड आपको एक सेंस ऑफ फीलिंग आने लगती है कि ओके शायद कहीं कुछ गलत हो रहा है एंड मुझे बात करने की ज़रूरत है। अब वो बात करके ही पता लग सकता है विद एन एक्सपर्ट कि व्हाट्स रॉन्ग, कब से गलत हो रहा है, क्या इशू है, इज इट
जस्ट स्ट्रेस और एंजाइटी, या फिर आप में सेल्फ हार्मिंग तो कुछ नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा साइन होता है। आर यू गेटिंग वायलेंट, आर यू गेटिंग अग्रेसिव, आपको भूख नहीं लगना, नींद नहीं आना, कुछ करने का मन नहीं करना, इंटॉक्सिकेशन की तरफ आगे बढ़ना, ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, जंक फूड, लेथार्जी, फटीग, बार बार फीलिंग आना कि लाइक लोनलीनेस, यस, मतलब सबके साथ होते हुए भी वी आर फीलिंग ऑफ कि हम अलग है, हम अकेले हो गए हैं। आई थिंक दैट इज सिम्टम्स जो हमें फील कराता है कि या वी आर सफरिंग ऑफ समथिंग बिग इशू। एग्जैक्टली, So- देयर इज सम हिडन ट्रॉमा, देयर इज सम हिडन इमोशन, और उस पे बात करने की जरूरत है। So let's start with your story. Like, what led you to explore mental health and healing? Okay, so basically I founded this 6 years back, and I'm a lawyer as well, and I use my legal knowledge in my counseling center itself. I started this center because I always wanted to do something for the mental health issues since childhood. I wanted to do something for the, we can say the vulnerable sections, or for the sufferers, and for women, for suicide prevention, all of those things. And personally, I've seen a lot of addiction issues in my family, and I've seen a suicide in my family. So since then, I decided that I will be launching my own initiative or opening my own center. So this is what motivated me, and we have counseled more than a lakh people in last 5 to 6 years. Saved so many people from separation, from committing suicide, and ShwetaHeals.com is the website name. You can see all the success stories there. People have reviewed it, how it has helped them in career, anxiety. So yes, this is what motivated me, and I think I'm going fine in this direction. There's a lot to do. I'm soon going to launch an AI counselor. कि ह्यूमन काउंसलर्स तो हैं, बट शाम के बाद या रात के समय जब आप अकेला फील करो और आपके पास कोई है नहीं, तब आप कैसे एक एआई काउंसलिंग की मदद ले सकते हो और अपने आप को बचा सकते हो कुछ बड़े हार्म से। सो ये जो AI काउंसलर है, प्लीज बी ब्रीफ अबाउट इट कि एक्चुअली ये कैसे हेल्प करेगा। ये बिल्कुल चैट जीपीटी की तरह होगा या ग्रोक AI के थ्रू होगा, जैसे लोग अपनी मेंटल हेल्थ इशू को AI को बताएंगे एंड दिस AI जस्ट टैकल विद ऑल दिस प्रॉब्लम एंड गिव द जेन्युइन रिव्यूज, जेन्युइन व्यूज। ओके, सो इज इट लाइक दैट? जो ओपन एआई है या फिर जो भी और एआई के एप्स हैं, वो एक इट्स अ नॉर्मल जनरल एआई ऐप। आप उस पर करियर के बारे में पूछ सकते हैं, खाना बनाने के बारे में पूछ सकते हैं, रोज़मर्रा की बातें कर सकते हैं। बट जो द ऐप विच आई एम वर्किंग ऑन राइट नाउ, उसका प्रोटोटाइप अभी डेवलप हो रहा है। इट विल बी प्योरली फॉर मेंटल हेल्थ, सो यू विल बी नोइंग कि ओके मुझे मेंटल हेल्थ के बारे में देखना है, जानना है, be it meditation, be it audios, be it mindfulness, be it assessments, tests, report generation, वो सब कुछ एक जगह मिलेगा। तो it cannot be compared with the OpenAI thing because that is for everything, but this will be specifically for these issues. Secondly, AI counselors will deal with nocturnal anxiety issues. A lot of crime rates happen during night, lot of self harming happen after evening, काफ़ी lonely अकेलापन शाम के बाद लगता है। लोगों के घर में डेथ्स हो जाती हैं तो बोलते हैं कि पूरा दिन तो कट जाता है बट शाम और रात नहीं कटती। तो इन सारे इश्यूज पे बात करने के लिए, आपके मन को साझा करने के लिए, आपके मन से खुल के बात करने के लिए वो एआई चैटबॉट, एआई काउंसलर्स होंगे जो ऐप के थ्रू आप लॉग इन करेंगे और उससे बात कर सकते हैं। और फिर अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे किसी ह्यूमन काउंसलर की भी ज़रूरत है, यू वांट सम पर्सनल टच, तो उसके लिए पूरी टीम होगी बैक एंड पे। आप ह्यूमन काउंसलर को भी रीच आउट कर सकते हैं। Actually, that is great that you are actually joining two main domains, the AI and the mental health. और जब इसका एक कॉम्बिनेशन तैयार होगा, आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट थिंग। सो एज यू टोल्ड कि नॉक्टर्नल इश्यूज होते हैं लोगों को आजकल, जब रात में वो सोने जाते हैं, बहुत अपनी थॉट में इतना डीप खो जाते हैं कि उनको कई बार एनजाइटी, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों से डील करना पड़ता है। बट ये एक्चुअली व्हाट इज अ कॉज ऑफ द नॉक्टर्नल इशू?
सो इसके कॉजेज लाइफस्टाइल कॉजेज हैं, नॉक्टर्नल एज इन नाइट इश्यूज। हम इजी भाषा में अगर बात करें कि शाम के बाद जो भी आपको प्रॉब्लम फेस होता है, या तो आपको अकेलापन लगता है या फिर आपको खालीपन लगता है घर में, आपके पास कोई बात करने के लिए नहीं है, आपको नींद नहीं आती है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, या पैनिक अटैक्स आते हैं, ब्रेकडाउन्स होते हैं, फिट्स आते हैं, तो अगर आप, ये सब आपके पूरे दिन पे भी डिपेंड करता है। आप कितने बजे उठ रहे हैं, आप पूरे दिन क्या किया है, आपने अपनी एक्सरसाइज किया है नहीं, आपने कुछ, हैव यू डन एनी ब्रीथिंग टेक्निक्स, हैव यू लर्न एनी मेडिटेशन टेक्निक्स, आर यू इन अ जॉब, आर यू अनएम्प्लॉयड, और आपके घर में कोई है या नहीं, बिकॉज पूरा दिन आप अपने आप को जैसे तैसे बिजी रख सकते हो, पर शाम को आने के बाद रियलिटी डॉन्स, ओके फाइन, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, मेरी लाइफ में ये चल रहा है, मेरे घर पे लोग नहीं हैं, या फिर मैं अकेला हूँ, या ये लोग चल जा चुके हैं मेरी लाइफ से। तो जब वो सारे इश्यूज एक साथ आप पे बॉम्बार्ड होते हैं शाम को, तो फिर वो आपको सैड करने लगते हैं। इसीलिए एफर्मेशंस रात को करना, रात को मेडिटेशन करके सोना, अपनी क्लींजिंग करना, जर्नलिंग करना, डायरी लिखना, या अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शाम के टाइम बात करना, इवनिंग स्पिरिचुअल कॉन्सर्ट्स होते हैं, लाइक लॉट ऑफ भजन्स एंड डिवोशनल सॉन्ग्स यू कैन चैंट ड्यूरिंग द इवनिंग टाइम, विच हेल्प्स यू गो इन द स्लीप मोड, बिकॉज जो हमारा स्लीप हार्मोन है वो 9 PM रिलीज होता है अकॉर्डिंग टू द सर्काडियन रिदम। मेलाटोनिन इज द नेम ऑफ द स्लीप हार्मोन, जो 9 बजे रात को रिलीज होता है। तो अगर आप अपना फ़ोन लेके सो रहे हैं, इंस्टाग्राम देख के रात को सो रहे हैं, तो आपको नींद नहीं आएगी, आपको सपने आएंगे। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपकी रात को गवर्न करते हैं। सो यूजुअली लोग अपने दिन का तो प्लान बनाते हैं, टू डू लिस्ट बनाएंगे, बकेट लिस्ट बनाएंगे, प्लानिंग, डिसिप्लिन, टाइम टेबल बनाएंगे, बट कोई भी नाइट रूटीन नहीं बनाता अपना, कि मैं शाम के बाद क्या करने वाला हूँ। पीपल आर लाइक, पूरा दिन हो गया ना, नाउ लेट्स पार्टी, लेट्स ड्रिंक, लेट्स डू दैट, लेट्स डू बिंज वॉचिंग, लेट्स डू नेटफ्लिक्स, बट आपकी रात ही डिसाइड करती है कि आपका अगला दिन कैसा होने वाला है। तो इसलिए इवनिंग एंड नाइट रूटीन आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेचर की So, बात करें तो पूरा दिन सनलाइट होती है, और मून लाइट जब रात को होती है तो मून आपके माइंड को बहुत इफेक्ट करता है। लाइक अभी फुल मून चल रहा है, मून का इफेक्ट आता है टाइड्स पे, वेव्स पे, वाटर पे, और हमारी बॉडी 75% वाटर से बनी है। तो इसीलिए मून, प्लैनेट्स, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हमें, हमारे माइंड को इफेक्ट करते हैं। तो पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट, एंड इन माई काउंसलिंग आई टेल देम अबाउट दिस एज वेल। So we should be aware about the nature, about the rhythm, about our body. शाम के बाद there's a concept कि पूरे दिन हम white light में रहते हैं, like the tube light and all. But after evening hours, there should be dim light in home. फोन में भी अब फिल्टर्स आ गए हैं, नाइट लाइट का कॉन्सेप्ट आ गया है, आई कंफर्टर्स आ गए हैं, सो दैट आप स्लीप मोड में जाओ, धीरे धीरे हाइबरनेशन में जाओ, और रात का टाइम सोने का है, रेस्ट का है, रिलैक्सेशन का है। तो इन सब से आपके इश्यूज, ब्रेकडाउन्स, ये सब काफ़ी हद तक सॉर्ट होने लगते हैं। अगर आप अपने बॉडी को ठीक कर लो तो माइंड भी ठीक होने लगता है। उसके बाद भी कोई इशू रहता है तो उसके लिए काउंसलर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, आप उनसे बात करिए। सो या दैट इज द थिंग। और उसके बाद अभी मैं ना एक रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ रही थी जहाँ पे आई जस्ट नो दिस टॉपिक अबाउट द डोपामिन इंसेंसिटाइजेशन, जहाँ पे लोग लाइक डिजिटल वर्ल्ड में इतना खो जाते हैं कि एक टाइम पे आपके माइंड का लेवल ही हो जाता है कि जब तक आपको एग्जैक्ट डोपामिन रश नहीं मिलेगा तब तक आपको हैप्पीनेस की फीलिंग नहीं होगी। ये एक तरह की बिल्कुल एक पैनिक सिचुएशन माइंड में हो जाता है। सपोज आई जस्ट अपलोड एनी वीडियो, आई ओवर द टाइम आई जस्ट सी व्हाट इज द स्टैट अबाउट द व्यूज, कमेंट्स, लाइक और इन सब चीज़ों के बारे में। सो इन टूडेज डिजिटल वर्ल्ड और डिजिटल एरा, हाउ डू यू थिंक सोशल मीडिया इज अफेक्टिंग द मेंटल हेल्थ? Okay, so social media has certain pros, but then it has a lot of cons as well. It has definitely affected our mental health. If I connect this question to the earlier question, a lot of people do social media scrolling during night time, and that leads to a lot of dreams, a lot of bad dreams, attacks, breakdowns, and insomnia. 2-2, 3-3 बजे तक
जनरेशन, जो अभी वाली जनरेशन है, वो सो नहीं पाती है. Even the previous, our elders also, they are also addicted. It's not just this generation. So social media का use आप करिए marketing के लिए, publicity के लिए, promotion के लिए, और probably just to interact and make a network. बट अगर वो आपकी हेल्थ और माइंड को ख़राब कर रहा है, आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं और आपका माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, तो इट्स अ कर्स. एंड आपको पता होना चाहिए कि आपको कब छोड़ना है. स्कूल्स में ही अब 6-7 क्लास से बच्चों को टैब दिया जा रहा है, तो पेरेंट्स पे भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों को क्या दे रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं. वो खुद तो वर्किंग हो गए हैं, बट क्या वो अच्छे पेरेंट्स बन पा रहे हैं? हम कौन से डेवलपमेंट के आगे, वेयर आर वी गोइंग, वेयर आर वी हेडिंग? कुछ टाइम के लिए अपने बच्चों को हाथ में चिप्स दे देना, फ़ोन दे देना, उनको चुप करा के अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाना. I don't think this is a good parenting. Parents have their own reasons, own excuses कि हमारी भी लाइफ है, हमें भी काम करना है, ये हमें नैग करते. अरे तो भाई बचपन से उनकी अपब्रिंगिंग वैसी ही करो ना. So lot of responsibility is there on this generation parents and the upcoming parents कि आपको कितना गैजेट्स देना है, कितना टेक देना है, कितना फ़ोन देना है, कितना यूट्यूब देना है. स्कूल में बोला जा रहा है तो आप उस पर एक बैलेंस लगाइए. पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स करिए. अगर लोग इस करेंगे ही नहीं, सेंसिटाइजेशन नहीं करेंगे, इससे बातचीत नहीं करेंगे और बस एक कैजुअल एटीट्यूड के साथ बढ़ते रहेंगे, अरे इट्स नॉर्मल, लेट इट बी, बच्चों के छोटे में ही इंस्टाग्राम अकाउंट्स बना देंगे. तो जो आज अगर हम लोगों ने इंस्टाग्राम अकाउंट 20 साल में बनाया, तो वो 2 साल में बना रहे, तो कहाँ जाएगी मेंटल हेल्थ फिर? तो we have to be really thoughtful on what we are doing. And social media does have effect on your everything. बोल रहे हैं कि I also read this article recently कि हमारे टाइपिंग से हमारे फिंगर्स के आगे के शेप्स भी चेंज हो रहे हैं अब. What finger are we using the most? And I remember my time, like a few years back, I was doing a lot of social media work. तो मेरे जो ये फर्स्ट 2 fingers हैं, index fingers and my thumb, I developed some sweet pain, some sensation in my fingers, and I quit that job and I switched to another job because for me my health is most important. Job तो मैं कर ही लूँगी, ढूंढ लूँगी. सो ये जैसा डिसीजन मैंने लिया, क्या ऐसा लोग ले पाते हैं? क्या उनमें इतनी प्रायोरिटी है कि अपने हेल्थ को लेके डू दे प्रायोरिटाइज देयर हेल्थ? बिकॉज जॉब आप लाइफ के लिए कर रहे हो, अगर लाइफ ही नहीं बचेगी तो उस जॉब का क्या फ़ायदा? सो इन सारी चीज़ों पे बातचीत करने से और ऐसे पॉडकास्ट करने से, अवेयरनेस करने से लोगों में जागरूकता आती है. एंड आई एम श्योर कुछ तो बदलाव आएगा. Obviously, that is the thing. और लाइक एज यू वर्किंग एज अ काउंसलर, ठीक है, हम लोग तो एक नॉर्मल सिटीजन की तरफ लाइफ जीते हैं. अगर मैं डॉक्टर की बात करूँ, या डॉक्टर इज़ वेल अवेयर ऑफ देयर लाइफ, उनको ये पता होता है कि हाँ हमें कैसे क्या करना है, तो जिससे हमारी जो हेल्थ इशू है वो ज़्यादा ना बढ़े. आई एम नॉट सेइंग कि डॉक्टर खुद एक वेलबींग, हेल्दी वेलबींग होते हैं, बट या दे आर वेल अवेयर ऑफ देयर हेल्थ इश्यूज, और वी कैन से दैट हाउ दे हैव टू बी फिट, वो ये चीज़ उनको पता होती है. As same as you are a counselor dealing with so many mental health issue day by day. So I just want to ask you what your go-to practice or rituals for the emotional self-care. आप अपनी लाइफ में ऐसा क्या करते हो जिससे आपको ये चीज़ पता हो कि हाँ मैं ये चीज़ कर रही हूँ, मैं अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए कर रही हूँ, बीइंग अ मेंटल फिट, आई जस्ट वांट टू डू दैट. तो ऐसी क्या चीज़ें हमें करनी So चाहिए? since last 15 years, yes, I am in yoga, meditation, and I do my own spiritual practices. I'm into spirituality since last 15 years. I found my guru when I was 19. So I involve myself into a lot of yoga practices. First of all, I take care of my night. I take care of my sleep hours. I wake up on time. I sleep on time. I take care of my diet. I do regular healthy exercises. I do a lot of breathing techniques, yoga techniques, pranayam, and mindfulness. Mindfulness is basically a Western word which has been derived from the Indian thing, meditation.
and I've learned meditation. I've learned Sudarshan Kriya from the Art of Living. It's world's most powerful breathing technique. It's a rhythmic breathing technique, and I joined Art of Living when I was 19 years old. So this organization has really helped me in balancing my own physical and mental health. एंड दैट इज वॉट आई एम गिविंग बैक टू द सोसाइटी. जो मैंने सीखा है मैं वही आगे लोगों को दे रही हूँ. Along with that, I do a lot of journaling. I do writing. I go out on travel trips, solo trips, and I go to a lot of religious places as well. I am a religious person too, and I have a good set of people to talk to. I have a nice family. I have a good loving partner. I have a good chunk of friends with whom I share my day-to-day thoughts and feelings. I have my own counselor too. That's something which usually psychiatrists and psychologists or even counselors don't talk about. मेरे खुद के गुरु तो हैं स्पिरिचुअल मेंटर, बट मेरे अपने साइकोलॉजिस्ट भी हैं. If I am stuck at some point, I take help too. So energy is a flow, you know. आपको किसी से एनर्जी मिलती है, आप आगे पास ऑन करते हो. It's in a flow. It's like a chain. You get and you pass on. So what I have learned from my mentors and masters, I pass on to others, and I hope that they also pass on to the future generations. This way we can build a sustainable environment. So all these practices I do on a regular basis. I do a lot of cleansing work as well. After every counseling, I chant mantras. I do cleansing. I take salt baths. I take salt and coffee baths too. So all these things help in letting out the suppressed things. Negative energy को दूर भगाता है ये सब. एनर्जी That is तो है, बट नेगेटिव एनर्जी भी होती है, पॉजिटिव नेगेटिव सब है. तो मैं उससे अपना ऑरा क्लीन रखती हूँ और आगे उसी को पास ऑन करती हूँ. या एक्चुअली ये चीज हम अपनी पर्सनालिटी में ही दिखा देते हैं कि हम कितना काम रहते हैं अपनी जिंदगी में, किन डिसीजन को फॉलो करते हैं, या हम जर्नलिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे. बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट जर्नलिंग यू आर वेल अवेयर अबाउट योर थॉट्स कि हमारे माइंड में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं. हम उससे अपने लाइफ में एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं. बिकॉज इट इज़ वेरी नेसेसरी टू बी वेल अवेयर ऑफ आवर थॉट्स, क्योंकि इससे हमें आगे के स्टेप्स के लिए हमें क्या करना चाहिए लाइफ में वो मिल जाता है. एंड कभी भी हम स्टक नहीं होते. तो या जर्नलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जस्ट बिफोर वी रैप अप, व्हाट्स वन मैसेज यू वांट एवरी लिसनर टू टेक अवे फ्रॉम दिस एपिसोड? Okay. First of all, I would just like to request everyone that watch this podcast and share this as much as possible so that we can change more lives. Secondly, one key takeaway is that whenever you feel alone, whenever you feel sad for a consistent number of days or weeks, and you feel you need to talk to someone, then don't hold back. मैंने एक पैटर्न देखा है लोगों में कि जब बहुत परेशान हो जाते हैं इमीडिएटली कॉल कर देते हैं, बोलते हैं आएंगे काउंसलिंग के लिए बात करेंगे, एंड देन काफ़ी बार वो नहीं आते, या बाद में एक कॉफ़ी ब्रेक पे चले गए, मूवी देखा है तो उन्हें लगता है प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. वो तो मोमेंट्री सॉल्व हुई है ना, रूट्स से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है. सो आप बात करें, काउंसलर्स के पास जाएं, मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें और इसे टैबू या स्टिग्मा के जैसे ना माने. और एक स्ट्रॉन्ग माइंड ही एक वीक बॉडी को भी लिफ्ट कर सकता है. बट अगर माइंड कमज़ोर है तो वो आप कितनी जिम बॉडी बना लो, लेकिन आप अपनी बॉडी को लिफ्ट नहीं कर सकते हो. तो द की टेक अवे इज दैट प्रायोरिटाइज योर मेंटल हेल्थ, सीक आउट हेल्प, डोंट सेल्फ हार्म योर सेल्फ. सुसाइड का अगर 0.001% भी ख्याल मन में आता है तो इमीडिएटली कॉल अस और एनीवन हु इज आउट देयर फॉर यू. बट you have no right to end your own life. Life is very beautiful and precious. Yeah, that is the thing. और एक्चुअली मैंने आपके कुछ स्टेटस को अप टू डेट आप डालते भी हो, तो मैंने देखा था कि यू जस्ट अपलोड अ इमेज और द यूट्यूब और द न्यूज़ कि कुछ बच्चों ने और द फैमिली मेम्बर जस्ट सुसाइड इन देयर होम. Yes. सो एक बार with before ending this session उसके बारे में भी बताइए, Yes, so I that recently- everyone should aware कि ये चीज
तो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है. Exactly. Every day, like I have been reading news lately on suicide because मेरा main purpose suicide prevention भी है. Uh, because I've seen it personally, so I can feel the pain as well. And a father, along with his 2 children, committed suicide in Delhi recently, just probably 3-4 days back, and only wife is left now, survivor. सो एंड आसपास के लोगों का ये कहना है कि वो तो इतना खुश मिजाज इंसान था, वो तो इतना हैप्पी पर्सन था, एंड कभी सोचा ही नहीं कि वो भी ऐसे कर सकते. तो काफ़ी बार देखा गया है कि जो लोग बहुत हैप्पी फेस दिखाते हैं, दूसरों के दुख को शेयर करते हैं, उनके अंदर ही बहुत कुछ चल रहा होता है. तो अपना एक स्ट्रॉन्ग इमेज बना के रखें, बट अंदर से स्ट्रॉन्ग होना ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन बाहर एक मैचो इमेज दिखाने की. तो ऐसे कदम ना उठाएं. अगर कहीं भी कोई भी व्यूअर, कोई भी लिसनर है जिसके मन में ऐसा ख्याल आता है, इमीडिएटली चैट बॉक्स में लिखें. रीच आउट कर सकते हैं कहानी को, मुझे, श्वेता हील्स को, एनीवन, बट प्लीज गिव अस अ चांस एंड गिव योरसेल्फ अ चांस टू लिव. So yeah, thank you so much for joining us Thank you. today, Shweta. And if this conversation resonated with you, who are the viewers, take a moment to pause, reflect and share it with someone who might need to hear it too. So remember, healing is not a destination, it's a journey, and you are not and never alone in it. So if you found value in today's episode, don't forget to follow, rate and review the podcast. And for more content, tools and soulful conversation, connect with me on Instagram and Shweta Hale as well. So thank you so much for Thank you. watching this episode.